Now we'll be discussing centrifugal compressors. Briefly, a detailed video is already available in my channel, in which I have in detail discussed the centrifugal compressors applications in the process plant, and I have discussed this in my oil and gas plant, in which I used to work as an electrical instrument engineer. Okay. Air compressors of various designs are used widely in numerous applications. Compressed air has numerous uses for the facility, including the operation of equipment and portable tools. So these compressors can be used for the gas compression purposes, as well as for the air compressors. These can also be used. So the types of the compressor, there are various types: reciprocating compressor, rotary compressor, and centrifugal air compressors. So these are basically dynamic compressors. Centrifugal compressors are dynamic compressors. They produce high flow for high flow applications and relatively less pressure ratio. A centrifugal compressor originally built to handle only large volumes of low pressure gas and air has been developed to enable it to move large volumes of gas. That's the basic application: large volumes of gas, high flow application with the discharge pressure up to 35,000 psi G. However, centrifugal compressors are now most frequently used for medium volume and medium pressure air delivery. One advantage of the centrifugal pump is the smooth discharge of the compressed air. Now, it has used the interchanging word, sometimes pump and sometimes, basically there is some difference. Pump is used for liquid applications and air is used, centrifugal compressor is used for fluid air or gas fluid applications. Okay. The centrifugal force utilized by the centrifugal compressor is the same force utilized by the centrifugal pump. The air particles enter the eye of the impeller, designated D. Basically, in these compressors, there is centrifugal force which is being applied by these impellers. यानी आपकी जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो इस पर अमल करती है. इसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो प्राइम मूवर इसको दे रहा होता है, इम्पेलर्स के थ्रू आपके इस फ्लूइड में आएगी और वो फ्लूइड आगे डिस्चार्ज वॉल्यूट्स लगे होते हैं. यानी ये जो जिसमें काइनेटिक एनर्जी बेसिकली आ रही है ना, ये आपके जो फ्लूइड में काइनेटिक एनर्जी आ रही है, ये आगे डिस्चार्ज वॉल्यूट लगे होते हैं जिस पे ये टकराती है और वो काइनेटिक एनर्जी फिर आगे प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. तो इस तरह से आपका जो ये डायनामिक कंप्रेसर्स होते हैं सेंट्रीफ्यूगल, वो इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से जो है वो प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं, हाई प्रेशर प्रोड्यूस करते हैं. ओके. अब इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो इसकी प्रोटेक्शन है. इस सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर की प्रोटेक्शन कैसे करते हैं, तो इसमें हमने देखा कि ये सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर लगे हैं, इसके शुरू में स्क्रबर क्या होता है कि स्क्रबर लिक्विड पार्टिकल्स को रिमूव करता है. कंप्रेसर में हमने लिक्विड नहीं जाने देना. ठीक है. अगेन मैंने अभी आपको बताया कि पंप और कंप्रेसर में फ़र्क क्या है. पंप लिक्विड एप्लीकेशंस के लिए होता है और कंप्रेसर आपकी जो है वो गैशियस एप्लीकेशंस के लिए होता है. फ्लूइड का जो टर्म है वो दोनों के लिए खैर यूज़ हो जाता है. फ्लूइड इज ओके. अब इसमें आप देखें स्क्रबर जो है वो लिक्विड को रिमूव कर देगा और सिर्फ गैशियस जो है फेस फ्लूइड आपका आगे जाएगा. ठीक है. और उसके बाद जनाब कंप्रेसर से वो कंप्रेस होने के बाद उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा गैस का या एयर का, तो उसको हम कूलर से गुजारते हैं. ठीक है. और कूलर से गुजारने के बाद वो वापस जो है हाँ, अब इसमें देखें ये रिसाइकिल वेल्व लगा हुआ है. इसका नाम क्या होता है? रिसाइकिल वेल्व. रिसाइकलिंग हो रही है ना, आपकी आउटपुट इनपुट पे जा रही है, रिसाइकलिंग हो रही है. अब अगर 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 आपका यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपका प्रेशर जो है वो बहुत बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी जो आपको आगे गैस दे रहे हैं वो आगे यूज़ ही नहीं होती. यानी आपका यहाँ कस्टमर लगा हुआ है, जैसे हमारा ये अगर प्लांट है तो यहाँ गुड्डू पावर प्लांट था, वहाँ पे जब गैस टरबाइन उनकी ट्रिप होती थी तो हमारे पास जर्क आती थी, हमारी प्रेशर हमारा फ्लो जा रहा है 250 mm SAFT का, तो अचानक कट आता था उसके ऊपर, तो फिर वो बैक प्रेशर होता था. अब वो बैक प्रेशर जब होगा तो क्या होगा, कंप्रेसर का एक डिस्चार्ज प्रेशर है PD और एक ये है हेडर प्रेशर. तो PD हेडर प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए ताकि आपका फ्लो फॉरवर्ड फ्लो हो, यानी फ्लो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा. ठीक है. अब अगर आपका हेडर प्रेशर जो है वो ज़्यादा हो गया है आपके डिस्चार्ज प्रेशर से, तो फिर आप फ्लो तो रिवर्स हो जाएगा. जैसे रिवर्स पावर, जैसे करंट होता है हाई वोल्टेज से लो वोल्टेज की तरफ, इसी तरह से गैस हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी. तो इसमें रिवर्स गैस रिवर्स फ्लो होगा. इस जो रिवर्स फ्लो होता है ना, इसको कहते हैं सर्ज. सर्ज इसको बोलते हैं. और इस सर्ज से हमने इस कंप्रेसर को बचाना है क्योंकि ये इसको डैमेज कर देगी. उसके लिए लगा होता है एंटी सर्ज कंट्रोलर. ठीक है. तो ये क्या करेगा, जैसे सर्ज आएगी यहाँ प्रेशर एकदम हाई होगा तो ये वेल्व ओपन हो जाएगा, क्योंकि इस प्रेशर को इधर इन इन सक्शन पे दे देगा
और सक्शन पे देने से क्या होगा कि कंप्रेसर रिसाइकल मोड में चला जाएगा, यानी ये अपने सक्शन में जो है वो प्रेशर डालना शुरू कर देगा, और मतलब इसमें रिवर्स नहीं होगा, रिवर्स फ्लो नहीं होगा। The such phenomenon in centrifugal compressors can be understood as a complete breakdown and reversal of flow through the compressor। इसको कहते हैं reversal of flow, compressor से flow का reverse होना। Every centrifugal compressor has its own operating characteristic map। ये होता है compressor map, इसको बोलते हैं कि जिसमें आप compressor का operating points होते हैं, ठीक है। एक्स एक्सेस पे volumetric flow है, ठीक है आपका, और वाई एक्सेस पे आपका जो है वो, या तो आप ले सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ यूनिट्स होते हैं कि आप जो है कौन से यूनिट्स, इसमें इसमें मुख्तलिफ स्टडीज़ हैं कि आपने कौन से जो है वो पैरामीटर्स आपने सेलेक्ट करने हैं। इसमें कंप्रेशन रेशो भी आ सकती है, इसमें प्रेशर भी आ सकता है, इसमें पॉलीट्रॉपिक हेड भी आ सकता है, ठीक है, जो कि इसके पैरामीटर्स हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। खैर वो एक अलग स्टडी है, उसमें हम डिटेल में नहीं जाएंगे। एवरी सेंट्रीफ्यूगल कंप्रेसर हैज़ इट्स ओन ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक मैप। दिस मैप शोज द सर्ज लिमिट लाइन एंड द ऑपरेटिंग लाइन। सर्ज लिमिट लाइन, अब देखें ना, अब सर्ज कब आती है? सर्ज आती है जब फ्लो कम होता है, यानी फ्लो रिवर्स होता है और प्रेशर बढ़ता है, यानी अब ये प्रेशर है, यानी सर्ज तब आएगी जब प्रेशर बढ़ेगा। जैसे अब ये स्पीड है, अब ये कंप्रेसर मैप में मुख्तलिफ स्पीड है, 60%, 70, 80, 90, 100। मिसाल के तौर पे कंप्रेसर आपका 80 पे चल रहा है फॉर एग्जांपल, ये 80% है। अब अगर आपका फ्लो कम हो रहा है तो आपका ऑपरेटिंग पॉइंट लेफ्ट पे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट पे आएगा आएगा आएगा, और फिर ये सर्च कंट्रोल लाइन है, ठीक है, और ये पीछे रेड वाली है सर्च लिमिट लाइन। यानी रेड पे अगर टच हो गया का आपका ऑपरेटिंग पॉइंट, यानी प्रेशर इतना बढ़ गया, फ्लो इतना कम हो गया, तो अब क्या होगा कि फ्लो रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम करते हैं क्या है कि इसमें एक एडिशनल लाइन डाल देते हैं, इसे कहते हैं सर्च कंट्रोल लाइन, कि अगर आपका ऑपरेटिंग पॉइंट इस पॉइंट को अगर टच कर जाए तो रिसाइकिल वेल्व ओपन हो जाएगा। ये है एंटी सर्च कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। और ये कंप्रेसर मैप ये ज़रा ज़्यादा अच्छा बना हुआ है, इसमें आप देखें कि इसमें मुख्तलिफ एक्स एक्सिस पे क्यू है फ्लो और वाई एक्सिस पे है आर सी कंप्रेशन रेशो, और इसमें आप देखें कि मुख्तलिफ मार्जिनस हैं, ठीक है। आपकी ये जनाब आपके जो है वो सबसे मिनिमम स्पीड है और ये आपकी मैक्सिमम स्पीड है, और उसके दरमियान जो स्टेबल रीजन है वो ये है वाला है कि यहाँ पे आपने अपने कंप्रेसर को चलाना है, और ये आपकी बाउंड्रीज़ हैं। लेकिन आपने बाउंड्री से पहले क्या रखा हुआ है कि आपने मार्जिनस रखे हुए हैं, ये ऐसे ही हैं जैसे आपका एक ट्रिप लिमिट होती है किसी प्रेशर की या वॉल्यूम की फ़्लो की, कोई ट्रिप है, तो ट्रिप से आगे आप एक अलार्म लेवल रख देते हैं, ठीक है, अल्लाह लेवल 1, लेवल 2। तो ये ट्रिपिंग आपकी ये पीछे वाली है, और उससे आगे आपने थ्रेशोल्ड रख दिए हुए। अच्छा, अब ये एल्गोरिदम काम कैसे करते हैं कि इसमें सर्च पैरामीटर कैलकुलेट होता है। सर्च पैरामीटर कैसे कैलकुलेट होगा? देखें, ये सर्च लिमिट लाइन, अब ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, फॉर एग्जांपल ये ग्रीन रीजन, ग्रीन रीजन का मतलब है कि आपका फ्लो ठीक है, फ्लो ज़्यादा है और प्रेशर हेड कम है, ये अब आपका सही है, ग्रीन मोड के अंदर है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, देखें इसमें ये ऑपरेटिंग पॉइंट है। अब ऑपरेटिंग एस एस सर्च पैरामीटर क्या होता है? क्यू आर स्केयर एस एल एल ओवर क्यू आर स्केयर ओ पी। क्यू आर स्केयर क्यू आर स्केयर क्या चीज़ है? क्यू आर स्केयर बेसिकली फ्लो को कह रही है, फ्लो को मैंने आपको पहले बताया था कि ये मुख्तलिफ पैरामीटर, मुख्तलिफ यूनिट्स या मुख्तलिफ वेरिएबल से जो है वो हम कंप्रेसर मैप बना सकते हैं, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन दी रिक्वायरमेंट्स, ठीक है। अब इसमें देखें कि ये एक फ्लो का पॉइंट है, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि क्यू आर स्केयर एस एल एल ओवर क्यू आर स्केयर ओ पी। एस एल एल क्या होता है कि सर्ज लिमिट लाइन का फ्लो, यानी सर्ज। अब इस पे देखें कि ऑपरेटिंग पॉइंट फॉर एग्जांपल यहाँ पे है इस वक्त अगर आपका, यानी ग्रीन मोड के अंदर, तो उसमें आप देखें कि क्यू आर स्केयर ऑपरेटिंग ज़्यादा है और क्यू आर स्केयर एस एल एल कम है। एस एल एल क्या है? सर्ज लिमिट पे फ्लो, जो कि मिनिमम फ्लो। तो मिनिमम फ्लो डिवाइडेड बाय दिस फ्लो, ये लेस देन 1 होगा, ठीक है। यानी ये समझ लें अगर आपका 5 है और ये 10 है तो ये लेस देन 1 हो जाएगा। तो सर्च पैरामीटर आपका लेस देन 1 अगर होगा तो ये स्टेबल होगा आपका जोन ऑफ ऑपरेशन। और अगर आपका सर्च पैरामीटर 1 हो जाए तो इसका मतलब है कि वो सर्च लाइन पे पहुंच गया है, यानी आपको दोनों फ्लो बराबर हो गए हैं। और अगर वो ग्रेटर देन 1 हो जाए, इसका मतलब है कि ये फ्लो ज़्यादा है और नीचे ऑपरेटिंग फ्लो कम है, तो फिर तो कंप्रेसर सर्च में चला जाएगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है जिससे आप डिटरमिन करते हैं कि आपका जो कंप्रेसर है वो किस स्टेज के ऊपर है। अच्छा, अब ये क्यू आर स्केयर और एच आर आपने कैसे निकालने हैं? ये आप निकालते हैं सेंसर्स से, जो अभी हम देखेंगे कंप्रेसर में सेंसर लगे होते हैं, 5 सेंसर होते हैं। सक्शन प्रेशर, सक्शन टेम्परेचर, डिस्चार्ज प्रेशर, डिस्चार्ज टेम्परेचर और सक्शन फ्लो, यानी ये 5 सेंसर्स हैं। उनकी मदद से हम ये क्यू आर स्केयर और एच आर निकालते हैं। ये फॉर्मूले आगे आ जाएंगे। तो ये कंप्रेसर मैप है बेसिकली ना, कंप्रेसर मैप कंट्रोलर इस तरह से जो है वो डिसाइड कर रहा होता है, यानी कंट्रोलर कैसे जो है वो ये पॉइंट निकाल रहा होगा, एस एस, वो इस तरीके से जो है वो निकाल रहा होगा।
फिर इसके बाद एक फर्दर इसमें सर बनाया जाता है कि डेविएशन पैरामीटर, वो सर्ज पैरामीटर से ही बनाया जाता है, यानी सर्ज पैरामीटर यानी डेविएशन इज इक्वल टू 1 माइनस एस एस, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, डेविएशन इज इक्वल टू 1 माइनस एस एस, यानी अगर आपकी 1 माइनस एस एस का मतलब है कि अगर वो 1 माइनस दिस है तो डिविएशन पॉजिटिव होगी, यानी इस रीजन में क्या होगी, डिविएशन पॉजिटिव होगी, और इस पे क्या होगा कि डिविएशन ज़ीरो हो जाएगी, और लेफ़्ट जो रेड है इस पे डिविएशन आपकी जो है वो क्या होगी, नेगेटिव आ जाएगी। तो डिविएशन इज़ पॉजिटिव, इफ़ डिविएशन इज़ पॉजिटिव इट इज़ गुड, इफ डिविएशन इज जीरो देन इट इज ऑन दी सर्ज लाइन, ये लिखा हुआ है सबसे टॉप पे, सॉरी इक्वेशन है 1 माइनस एस एस माइनस सर्ज मार्जिन। सर्ज मार्जिन ये होता है कि नॉर्मली एक मार्जिन थोड़ा सा हम डाल देते हैं अपने पास से 10%, 5 to 10% मार्जिन नॉर्मली चल उसमें डाला जाता है, ठीक है। और डिविएशन अगर आपकी खुदा ना खास्ता नेगेटिव है तो इसका मतलब है कि आपका कंप्रेसर जो है वो सर्ज में चला गया हुआ है। तो ये दो पैरामीटर हैं, सर्ज पैरामीटर और डिविएशन पैरामीटर, जो बड़े इंपॉर्टेंट हैं सर्ज एल्गोरिथम के अंदर। इक्वेशंस ये आ गई इक्वेशंस, आर सी क्या होता है कि पी डी ओवर पी एस, डिस्चार्ज प्रेशर ओवर सक्शन प्रेशर, सिग्मा, सिग्मा को कहते हैं पॉलीट्रॉपिक हेड एक्सपोनेंट, ये निकलता है लॉग ऑफ टी डी ओवर टी एस माइनस लॉग ऑफ पी डी ओवर पी एस, यानी इनकी रेशो के लॉग से और इसकी रेशो के लॉग से। और एच आर ये जो वाई एक्सेस पे होता है पॉलीट्रॉपिक हेड, रिड्यूस्ड हेड इसे बोल रहा है, ये आर सी की पावर सिग्मा माइनस 1 ओवर सिग्मा। फिर आ गया था क्यू आर स्केयर रिड्यूस्ड फ्लो, ये कैसे हमने निकालना है, डेल्टा पी नॉट एस ओवर डेल्टा पी एस। पी नॉट एस क्या है, डेल्टा ये डिफरेंशियल फ्लो है बेसिकली, वो डी पी सेल लगा हुआ है फ्लो का। और एस एस जो कैसे निकालेगा आप, क्यू आर स्केयर एस एल एल ओवर क्यू आर स्केयर ओ पी। तो ये इसकी कुछ इक्वेशंस है। अच्छा फिर अब ये देखते हैं कि जनाब ये देखें आप, जब सर्ज आती है तो उसमें क्या होता है कि फ्लो पॉजिटिव से एकदम नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। रैपिड फ्लो ऑसिलेशंस, थ्रस्ट रिवर्सल्स, पोटेंशियल डैमेज। फिर आपकी प्रेशर पे आपका फ्लक्चुएट कर रहा होता है आपके कंप्रेसर से, अच्छी खासी आपको आवाज़ आ रही होती है, ठीक ठाक आवाज़ आ रही होती है जब उस पर सर्ज आती है। और राइजिंग टेम्परेचर बढ़ जाते हैं तो ऑपरेटर्स में फेल टू रिकॉग्नाइज, ये बहुत स्पीड होती है इसमें, मिली सेकेंड्स में ये होता है, तो आपके कंट्रोलर बहुत फास्ट होने चाहिए, इसलिए एंटी सर्च कंट्रोलर अक्सर डेडिकेटेड लगे होते हैं, यानी को पीएलसी वगैरह, पीएलसी भी यूज़ होती हैं लेकिन आमतौर पे हमारे पास प्लांट पे डेडिकेटेड लगे हुए थे कंट्रोलर। डेडिकेटेड का मतलब ये कि उनका काम ही ये है बस, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया हुआ है कि कंट्रोलर और पीएलसी में क्या फ़र्क होता है, कि जब आपके पास मल्टीपल आईओज आती है तो आप पीएलसी की तरफ जाते हैं, ठीक है। और आईओज अगर आपको वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं और एनालॉग आईओज ज़्यादा हैं तो फिर आप डीसीएस की तरफ चले जाते हैं। तो ये हमने सारा डिस्कस किया हुआ है कि हमने कंट्रोलर, पीएलसी, डीसीएस, स्काडा कब कैसे यूज़ करने हैं। ये देखें सर्च लिमिट साइकिल को ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि फ़्लो आपका जो है मिसाल के तौर पे स्पीड पे 100% पे चल रहा है कंप्रेसर, तो ये फ़्लो कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है। अब ये देखें ये बैक पे चला गया फ़्लो, अब फ़्लो इस लाइन को क्रॉस करके ये सर्ज आ गई कंप्रेसर पे, तो कंप्रेसर पे जब सर्ज आती है ना तो ये रिकवर भी होती है। फिर ये देखें रिकवरी से आप देखें ज़रा पिछले में भी आप ज़रा देखें तो रिकवरी भी हो रही है कि फ़्लो नेगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हो गया, फिर नेगेटिव हुआ फिर पॉजिटिव हो गया, तो एक ऑसिलेटरी सा प्रोसेस बन जाता है, ऑसिलेशन सी आ जाती हैं सिस्टम के अंदर, तो ये इस तरह की ऑसिलेशंस होती हैं। अच्छा फिर ये देखें फ्लो प्रेशर की और फ्लो के प्रेशर के ऑसिलेशंस आ गए। अब कॉजेज़ क्या होते हैं कि हाई प्रेशर बिल्डअप इन दी हेडर, हेडर क्या होता है कि कॉमन हेडर जैसे एक कॉमन हेडर जैसे मस्जिद में एक कॉमन पाइपलाइन है पानी का, उससे फर्दर आपकी टैप्स लगी हुई हैं। कॉमन हेडर क्या होगा, कॉमन पाइपलाइन, बड़ा पाइपलाइन जिस पे सारे पैरेलल ट्रेन्स कंप्रेसर की कनेक्ट हो रही हैं, ठीक है। तो हाई प्रेशर बिल्डअप इन दी हेडर ग्रेटर दैन द डिस्चार्ज प्रेशर, यानी अगर आपने फ्लो कंप्रेसर से कराना है तो कंप्रेसर का डिस्चार्ज प्रेशर हेडर के प्रेशर से ज़्यादा होना चाहिए तभी फ्लो फॉरवर्ड होगा। लेकिन सर्ज में क्या होता है कि हेडर का प्रेशर आपके कंप्रेसर के प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है जिसकी वजह से फ्लो रिवर्स होता है। दूसरी कंडीशन क्या होती है, लो सक्शन प्रेशर, अगर आपका सक्शन प्रेशर लो हो जाएगा तो कंप्रेशन रेशो तो कांस्टेंट है, तो उससे भी डिस्चार्ज प्रेशर आपका कम जनरेट होगा, तो उससे भी हेडर प्रेशर से फिर वापस आपकी कंप्रेसर की तरफ फ्लो हो जाएगा। तीसरा क्या होता है कि स्टार्टअप, कि अगर आप कंप्रेसर को जिस टाइम स्टार्टअप करते हो ना उस वक्त भी जो है वो सर्ज आती है, क्योंकि स्टार्टअप के दौरान प्रेशर कंप्रेसर का इतना ज़्यादा नहीं होता डिस्चार्ज, तो उससे भी सर्ज आने की डर होता है, उसमें हम रिसाइकल वेल्व को फुली ओपन कर देते हैं। और इमरजेंसी शटडाउन ये होता है कि कोई फॉल्ट आया और आपका कंप्रेसर अचानक से शटडाउन हो गया, यानी फुली बंद हो गया आपका कंप्रेसर, तो ये है इमरजेंसी शटडाउन। एक होता है नॉर्मल शटडाउन, नॉर्मल शटडाउन में तो ये होता है ना कि आप उसको बंद करते हैं प्रॉपर तरीके से मशीन को, ये इमरजेंसी शटडाउन है कि अचानक आपकी मशीन बंद हुई है, स्पीड आपकी मतलब आपको बंद करना है कंप्रेसर को, इमरजेंसी फॉल्ट आ गया,
तो उस सूरत में भी सर्ज के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि आपका प्रेशर यकदम जो है वो गिरता है। तो जैसे आपका पीडी गिरेगा तो आपका पीएच से जो है यानी हेडर प्रेशर से रिवर्स फ्लो होगा। The surge can't be eliminated, but it can be avoided or prevented. This surge phenomenon can be prevented by recycling or blow off a portion of the discharge flow. यानी आप या तो आप रिसाइकिल कराते हैं या आप उसको वेंट करते हैं। अब वेंटिंग इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, ठीक है। एयर में तो किसी हद तक ठीक है, लेकिन अगर आपकी गैस हो तो उसमें उसमें आपका वेस्ट होगा, तो आप रिसाइकिल करा देते हैं उसको। और ये याद रखिएगा कि जो रिसाइकलिंग होती है ना, ये एनर्जी वेस्टेज होती है। यानी हमारी कोशिश ये होती है कि हमारा कंप्रेसर रिसाइकलिंग पे कम से कम रहे, ताकि वो फजूल की एनर्जी दे रहा है ना, कि काम भी कर रहा है और प्रेशर भी जनरेट कर रहा है और अपनी सक्शन को दे ही जा रहा है, ठीक है, फिर जनरेट कर रहा है फिर सक्शन को दे ही जा रहा है। यानी एक अजीब सा लूप उसमें लग जाता है और वो वेस्टेज ऑफ एनर्जी है। तो हम कम से कम चाहते हैं कि हमारा रिसाइकलिंग जो है वो कम से कम हो। The anti-surge controller must be able to accurately determine how close the compressor is surging, so it can maintain an adequate but not excessive flow rate. Second flow rate, a compressor surge limit is not a fixed value. कंप्रेसर की सर्ज लिमिट भी फिक्स नहीं होती, ये वेरी करती रहती है। ये उसकी वजह से जो गैस आप यूज़ कर रहे हैं या जो भी फ्लूइड यूज़ कर रहे हैं उसकी कंपोजिशन के हिसाब से वो चेंज करती है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन द गैस कंपोजिशन, सक्शन टेम्परेचर, प्रेशर, रोटेशनल स्पीड एंड गाइड वेन एंगल, ठीक। गाइड वेन एंगल ये होता है जो इनलेट गाइड वेन्स होती हैं जिससे वो इनकमिंग हो रही होती है। अच्छा, सर्ज प्रोटेक्शन इज मोर कॉम्प्लिकेटेड बाय द स्पीड एट विच द सर्ज डेवलप्स। इट कैन ओनली टेक अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड ऑफ कंप्रेसर टू मूव फ्रॉम अ रिलेटिवली हेल्दी ऑपरेटिंग पॉइंट सर्ज, यानी 1 मिली सेकंड्स के अंदर सर्ज आ जाती है। Therefore, it is a logic reason to have a very fast final control element which we call the anti-surge control valves. In general application, the anti-surge controller receives a signal from the flow transmitter, pressure transmitter, temperature transmitter. ये वही अभी मैंने जो डिस्कस किया आपसे, तो फ्लो, सक्शन प्रेशर, सक्शन टेम्परेचर, डिस्चार्ज प्रेशर, डिस्चार्ज टेम्परेचर और फ्लो, सक्शन फ्लो, ठीक है। The anti-surge controller then is then analyzes the entire received signal, analyzes the entire received signal. The surge margin यानी कंट्रोल लाइन यूजुअली determine 10% मार्जिन होता है उसमें। कंप्रेसर की सर्ज लाइन से तकरीबन 10% का मार्जिन रखा होता है। टिपिकली प्रोपोर्शनल इंटीग्रल कंट्रोल एल्गोरिदम विल एक्टिवेट एंड स्टार्ट टू मॉड्यूलेट। तो ये जनाब आपका एक दिखा रहा है कि एडवांस एंटी सर्ज कंट्रोल सिस्टम एक दिखा रहा है जिसमें लाइंस हमने ऐड की हुई हैं। इसमें आप देखें आपकी सर्ज लिमिट लाइन है, रिसाइकल ट्रिप लाइन और सर्ज कंट्रोल लाइन है, ठीक है। जो कन्वेंशनल होगा उसमें प्रोपोर्शनल इंटीग्रल एल्गोरिदम होगा, लेकिन एडवांस में हम एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड कर देते हैं RTL, यानी जैसे वो सर्च कंट्रोल को टच करेगा तो पीआई रिस्पांस एक्टिवेट हो जाएगा। पीआई रिस्पांस से मुराद है कि जो कंट्रोल वेल्व का रिस्पांस होगा, और आरटीएल को अगर टच करेगा तो यकदम उससे जो है वो एक शूट करता हुआ रिस्पांस जनरेट होगा। ये देखें, यानी SCL विल जनरेट पीआई रिस्पांस एंड RTL विल जनरेट क्विक ओपनिंग रिस्पांस। यानी एक पीआई प्लस क्विक ओपनिंग से आप ये देखें कि वेल्व आपका यकदम ज़्यादा ओपन होगा, बिकॉज आपको सर्च अचानक आती है तो उसके लिए आपको वेल्व का रिस्पांस बहुत क्विक अक्सर चाहिए होता है। यानी अगर आपका ऑपरेटिंग पॉइंट आराम आराम से आ रहा है तो हो सकता है वो SCL से ही वापस चला जाए, लेकिन अगर आपका ऑपरेटिंग पॉइंट एकदम तेज़ी से आ रहा है जो कि SCL पे क्रॉस हुआ है, पीआई कंट्रोलर लगा है लेकिन वो मेंटेन नहीं हो पाया, ठीक है, तो फिर क्या होगा कि वो RTL आपने लगाई हुई है कि जिससे वो डेरिवेटिव रिस्पांस, इसे कहते हैं स्प्लिट PID कंट्रोल, यानी PI प्लस डेरिवेटिव कंट्रोल। अब ये डेरिवेटिव अगेन फॉर ओपनिंग ऑफ द कंट्रोल वेल्व है, ये क्लोजिंग के लिए नहीं होता, ये ओपनिंग के लिए है जस्ट, यानी क्लोजिंग के लिए इसको निकाल, इसलिए इसको कहते हैं PI प्लस D। नहीं तो हम PID लगा देते हैं, लेकिन अगर PID लगा दें तो वो फिर क्लोज भी तो करवाएगा वेल्व को, उससे भी सर्ज जा सकती है। तो ये सिर्फ ओपनिंग के लिए। तो अब इसकी मज़ीद डिटेल्स जो है वो एक सेपरेट एक वीडियो मेरी ऑलरेडी मौजूद है, मल्टीपल्स ऑफ वीडियोस भी मौजूद हैं इसके ऊपर, इसमें इसको आप मज़ीद डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।